हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे, मेडिक उत्कर्ष पे। हाँ, मैं जानता हूँ ये मेरी पहली वीडियो है, तो ये थोड़ी स्पेशल होने वाली है। और मैं हूँ आपका दोस्त उत्कर्ष शर्मा। मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ, परसुइंग बी फार्मेसी फ्रॉम राजस्थान। आई एम करेंटली इन थर्ड ईयर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रेजेंट ई पोस्टर, क्योंकि मैंने तो फिर भी थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है प्रेजेंटेशन दे दे के। बट मैं समझता हूँ मैंने भी यूट्यूब पर बहुत ढूंढा कि मेरे को ऐसा कोई कंटेंट मिले कि पोस्टर कैसे प्रेजेंट करते हैं, पोस्टर बनाते कैसे हैं। मैंने पहली बार प्रेजेंट किया था तो मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई। और आपको पता है जब इवेल्युएटर आता है तो छोटी चीज भी देखता है कि पोस्टर में कुछ गलत तो नहीं है। और वो गलत चीज आप उसको दिखी, वो तुरंत आपसे क्वेश्चन करेगा, और क्वेश्चन का आंसर है नहीं आपके पास, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता कि आपने उसमें किया क्या है। तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। ये मैंने एक पोस्टर बनाया है। हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके लिए मैंने एक पोस्टर डिजाइन किया है। तो मैंने सोचा कि इस पोस्टर के ही जरिए क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, जिससे जो बच्चे को इशू आता है पोस्टर प्रेजेंट करने में, उसको बोलने में, उसको हेजिटेशन होती है कि मैं वहां पे जाके बोलूँ क्या, और इसका देखने का कि इसको बनाना कैसे है, कि वहां से जो आ गया ऑर्डर कि बनाना है, बनाए कैसे। क्योंकि यहाँ पे कॉपी पेस्ट तो चलेगा नहीं कि हमने उठाया सारा सामान रख दिया, लेकिन वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है। टॉपिक कैसे चूज करे, फिर रेफरेंसेस कैसे लगाए, फिर उसमें इमेजेस कैसे यूज करे जो हमारे टॉपिक से रिलेवेंट हो। तो आज इसी वीडियो में इसी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम देखते हैं कि पहले मैं आपको एक डेमो देता हूँ कि मैं ये पोस्टर कैसे प्रेजेंट करता अगर मैं करता तो। सो good evening, dear respected judges and my dear co-participants. I am Utkarsh Sharma, studying B Pharmacy in Lord's University, Alwar. Today, I am going to discuss on a topic: viability enhancement techniques for poorly soluble drugs. So, aqueous solubility is the key parameter during the formulation since it influences drugs pharmacokinetic and pharmacodynamic. Most of the drugs are either acidic or basic, having poor solubility. More than 40% of the new chemical entities that are formulated in the pharmaceuticals are practically insoluble in water. Like more than 10,000 part of solvent is required per part of solute. It's a big amount. So poor aqueous solubility leads to variation in viability, absorption, and sometimes it causes GIT mucosal toxicity. So coming to the object, to explore various strategies that enhance the viability of poorly soluble drugs. Like we can see in the pie chart, 40% of the top most 200 oral drugs that are marketed in the USA, 33% of the drugs that are listed in the US pharmacopoeia, and 10% of the new chemical entities present presented as poorly soluble compounds. So, like, it's a big issue. Coming to the method, we have three approaches. The first one is the pharmaceutical approach, which involves the modification in the formulation, manufacturing, and changes in the physicochemical property of the drug. The second one is the pharmacokinetic approach. It involves the modification in the chemical structure of the drug. And the third one is biological approach. In this, we change the routes of administration like oral to parenteral. Out of three, second and third is not reliable because in third we are modifying the chemical structure, which leads to the formation of a new chemical entity, which requires repetition of clinical trials. And in the third, and it causes sometimes adverse effects also because it is totally new from the pre-existing drug. And the third one is the biological approach. Like we know that oral ingestion is the most common and convenient route due to its ease of administration and cost effectiveness. As a result, many of the generic drug companies are inclined to produce oral drug products. And like 85% of the
Most sold drugs in USA and Europe are orally administered. The oral viability of a drug depends on many factors like viability, poor, aqueous solubility, dissolution, drug permeability, first pass metabolism, pre-systemic metabolism, etc. So we will use the first approach, that is pharmaceutic approach. In this, the first method is micronization. It involves the conversion of large drug particles into small drug particles, which ultimately increase the surface area of drug. And we know that the large surface area provides greater interaction with the solvent. It can be, and the particle size range in the micronization is 1 to 10 micron. And it can be done with the help of spray drying, through colloid mill, and comminution. So, which drugs solubility can be enhanced by this method are like riboflavin, spironolactone, progesterone, fenofibrate, and several steroidal and sulfur drugs. The second one is the molecular encapsulation with cyclodextrin, the most common method, because cyclodextrin is non-toxic and it is proved by the animal studies. So in the second method, the cyclodextrin, what is cyclodextrin? Cyclodextrin is a non-reducing crystalline water-soluble oligosaccharide, and it is like a donut shape, which we can see in the image also. So in this, the structure of cyclodextrin like the hydrophilic surface and the hydrophobic cavity. The hydrophobic drug can be incorporated in the hydrophilic surface. So ultimately, the solubility of a drug increases by incorporating in the cyclodextrin. And the cyclodextrin, we have three cyclodextrin, alpha, beta, and gamma. The major difference in three cyclodextrin are the glucose subunit. In the first, alpha cyclodextrin consists of six glucose subunits, beta consists of seven, and the gamma consists of eight glucose subunits. And the drugs whose solubility can be enhanced by these methods are thiazide, diuretics, barbiturates, benzodiazepine, and number of NSAIDs. So coming to the third method is solid dispersion. So a solid dispersion is like uh, so coming to the third method, which is solid dispersion. A group of solid products consists of hydrophilic and hydrophobic matrix. The hydrophobic drug is incorporated in the hydrophilic matrix, which ultimately increase the solubility of a drug. And the drug, like sulfathiazole, solubility can be increased by the formation of solid dispersion in urea as an inert carrier, and many more drugs like you can see in the image, celecoxib, allopentrine, and ritonavir. The fourth one, use of salt forms. Like we know that many of the drugs are either acid or base. The salts of these drugs have generally higher solubility than their corresponding acids and base. So by forming the salt of particular acid or base increases the solubility of a drug, like strychnine hydrochloride, phenobarbital sodium, phenytoin sodium, penicillin B potassium, atropine sulfate. And the third one is incorporation of surfactants. Surfactants we mostly use in the pre-formulation, in the suspension, in the emulsion to stabilize it. So surfactant contains both polar and non-polar groups. It primarily increases the wetting and dissolution of fluid into drug particles. So the use of surfactant can increase the solubility by increasing the wettability, by increasing the dissolution, and ultimately it will increase the solubility of a drug. Like spironolactone and the surfactants which are used are like we can twins spans are there which can be used, and the last method is replace the formulation like nifedipine, for nifedipine. This method can be used, and
We can see in the image also, it is the image of beta cyclohexane structure. We can see the structure, the surface, the exterior part of cyclohexane, beta cyclohexane is hydrophilic. Like we can see the OH groups, the polar groups. So, and the inside the cavity, inside the cavity of beta cyclohexane, it is hydrophobic. Our drug in the B image, we can see our drug is incorporated in the, which is hydrophobic drug, is incorporated in the beta cyclohexane hollow cavity. Then it will increase the solubility of a drug. So coming to the challenge, first challenge we face that formulation complexity, stability concerns, cost of development, compatibility issues. Like if we talk about the formulation complexity, sometimes we know that excipients are inert material, but sometimes it is incompatible with the parent drug to formulate them to particularly increase the solubility or increase the stability. The cost of development, like we can see in the solid dispersion, it requires large amount of solvents, and it is also a time consuming process. So in the conclusion, these strategies can enhance drug solubility, absorption, and ultimately therapeutic outcomes. So thank you for your attention. तो यहाँ होता है हमारा पोस्टर की प्रेजेंटेशन खत्म। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपने देखा कि मैं भी कहीं में बीच बीच में मैं अटक रहा था। तो ये होता ही है जब आप दूसरी या तीसरी बार दे रहे हो, तो ये धीरे धीरे होता है। मुझे पता है कि जब मैं पहली बार मैंने जब दिया था तो मैं बता ही नहीं पा रहा था कुछ, क्योंकि नर्वसनेस इतनी थी कि मैं कैसे बताऊं लोगों को। ऊपर से आपको इंग्लिश बोलनी है। चलो इंग्लिश में तो यू आर कंफर्टेबल, कोई इशू नहीं है, बट एक हेजिटेशन आती है कि हम बोले कैसे जाके काम। तो वो हेजिटेशन आपको नहीं करनी, आपको सीधा बोलना है। जो जैसे मैंने बताया आपको कि आपको मतलब आपके इसमें एक भी चीज ऐसी छोड़नी नहीं है जिसके बारे में आप ना बताओ। अगर आप नहीं बताओगे तो वहां से वो क्वेश्चन पूछेंगे। जब एवेल्युएटर एवेल्युएट करेगा, जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर वो आपको आता होगा तो आप पहले ही बता दो ना। आपको बाद में वो उसके बाद फिर क्वेश्चन नहीं बचेंगे। फिर वो आपको ऐसे ही इधर उधर से कोई क्वेश्चन देखेगा पोस्टर में से, वो पूछ लेगा सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। तो वो चीज रही तो आप, हो सकता है कि आप जीत भी जाए, यू विल बी द विनर एट द एंड, हो सकता है। तो हम इसमें देखते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि इसमें जो रेफरेंसेस होते हैं, फिर रेफरेंसेस वैंकोवर स्टाइल में चलते हैं। वैंकोवर स्टाइल के लिए आपको यूट्यूब या गूगल पे आप एक बार सर्च मारना, उसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। जैसे हमारा लेटर का फॉर्मेट आता है ना, सैल्यूटेशन, फिर एड्रेस के बाद डेट, फिर अपन को फिर वापस सर वगैरह लिखना है, फिर जाके हमारा सब्जेक्ट सब्जेक्ट आएगा सर वगैरह से पहले। तो ऐसे करके पूरा फॉर्मेट होता है वैंकूवर का, कि ऑथर नेम आएगा, फिर हमारा टाइटल आएगा, हमारे टॉपिक का टाइटल क्या है, फिर जर्नल नेम आएगा, फिर ईयर आएगा, फिर वो भी 2 ईयर आ सकते हैं कि पहला एक्सेप्टेंस ईयर, फिर पब्लिशिंग ईयर, फिर उसके बाद वॉल्यूम आएगा, फिर इशू नंबर भी आएगा उसका, फिर पेज नंबर भी आएगा। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, आपको ये मिल जाएगी। इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए। अगर आपको इस पे भी एक वीडियो बनानी है कि रेफरेंस कैसे लगाते हैं वैंकूवर स्टाइल में, तो इस पर्टिकुलरली इसके लिए मैं एक वीडियो और बना लूंगा, जिसमें आपको सिर्फ एक रेफरेंस लगाना ही बताऊंगा कि रेफरेंस कैसे लगाते हैं। क्योंकि रेफरेंस मतलब क्या है ना, पूरा आपका पोस्टर अच्छा बन रहा है लेकिन आपने आखिरी में रेफरेंस गलत लगा दिया ना, तो आपको वहाँ एवेलेटर पकड़ लेगा। ये आपसे ये पूछ लिया कि यहाँ पे मैंने ये लगाया है, ये इसमें से ये जो है, ये जो है, ये ये क्या है, ये आपको पता ही नहीं। आपने तो साइड कर दिया ऐसे, इधर उधर से लेके कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन नहीं पता, तो यहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। एवेल्यूएटर आपके मार्क्स काट लेगा, चाहे आपका पोस्टर प्रेजेंटेशन कितना ही अच्छा हुआ हो।
लेकिन आपके मार्क्स यहाँ कट जाएंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा अलग से कि वैंकूवर स्टाइल में रेफरेंस कैसे लगाते हैं। तो अब रही बात इसमें कि ये इमेजेस वगैरह कैसे कहाँ से ली मैंने, ये ली तो मैंने इस आर्टिकल से लिए। मैंने बायोलॉजी एनाटॉमी टेक्निक पे कोई एक आर्टिकल पढ़ा। उस आर्टिकल से, एक ही आर्टिकल से नहीं लिए मैंने, दो दो आर्टिकल से लिए। वो दो आर्टिकल से मैंने चीजें ली, मैंने यहाँ पे उसको साइड किया। अब हम क्या करते हैं गलती, हमने पिक्चर तो ले ली, पिक्चर लगा भी दी, लेकिन हम उस आर्टिकल की साइटेशन देते ही नहीं रेफरेंस में कि हमने ये ली कहाँ से है। अब आपसे कोई पूछे, सपोज मेरे से कुछ पूछता है कि आपने ये कहाँ से ली इमेजेस, अगर ली और मैं कह भी देता हूँ कि मैंने उस आर्टिकल से ली, तो वो पूछेंगे कि आपने इसका रेफरेंस डाला है। तो मैं कहूंगा हाँ मैंने डाला है, ये पहला वाला रेफरेंस इसी का है, इन इमेजेस का, दूसरा भी इन इमेजेस का है। और बाकी इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्ट तो मैंने खुद ने लिखा है, और ये टेबल भी मैंने डिजाइन करी है खुद ने। मोस्ट ऑफ दी चीजें मैंने ही बनाई है, सिर्फ इमेजेस और कुछ डेटा जो मैंने आपको बीच में बताया। जैसे इसका बारे में बताया कि 40% जो ड्रग्स है वो प्रैक्टिकली इंसॉल्युबल होती है, जो टॉप ओरल ड्रग्स है यूएसए में। तो ये चीजें आपको ये गलती नहीं करनी है। बाकी बी कॉन्फिडेंट आपको, क्योंकि पोस्टर प्रेजेंटेशन में इतने सारे टॉपिक्स आते हैं, कोई भी, जैसे आपका शुरू में नंबर हुआ तो ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाता है तो वो सिर्फ है ना आपकी बातें सुनने से ज्यादा वो सिर्फ इस पे देखते हैं कि कुछ ऐसा पकड़ में आए कि वो क्वेश्चन लिख ले उस पर कि यार ये सॉलिड डिस्पर्जन लिखा है, सेलिकॉक्सिब हेलोपेंट्राइन डेटोना वेट तो लिखा है, मेरे को चौथी ड्रग बताओ। ये तो आपने तीनों लिख दी, मेरे को चौथी ड्रग बताओ जिससे ये हो सकता है। और इसकी क्या ये सॉलिड डिस्पर्जन, ये सारे मेथड एनवायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि हम ड्रग को वापस किसी चीज में इंकॉर्पोरेट करा रहे हैं, इसकी सॉलिबिलिटी कैसे इंक्रीज हो रही है ये बताओ मुझे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस के लिए है पहले से ही रेडी रहना है। और आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये पोस्टर तो सिर्फ दिखाने के लिए उन्हें, आपको इसमें से देख के नहीं बोलना। आपको तो बस जैसे ही पोस्टर इवेल्युएटर आए आपको सीधा बोलना चालू हो जाना चाहिए। बस पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है कि पोस्टर में क्या है, बस पोस्टर में दिखाना है सर ये इमेजेस को दिखाना है कि आप एज यू कैन सी इन द इमेज दिस डेटा एंड लास्ट में ये भी बताना है, जैसे ये मेरा रिसर्च पेपर नहीं है, ये मेरा रिव्यू है सिर्फ। आपको लास्ट में ये भी बताना है कि दिस इज नॉट माई रिसर्च वर्क, दिस इज एंटायरली बेस्ड ऑन रिव्यू। नहीं तो वो समझेंगे कि आपका रिसर्च वर्क है, तो आपको या तो पहले बता दो या लास्ट में बता दो। नहीं तो जब एवेल्यूएटर क्वेश्चन पूछे तो आपको सच बोलना है कि ये मेरा रिसर्च वर्क नहीं है, ये मेरा रिव्यू है। इस पे पहले से ही आर्टिकल बहुत सारे हैं, ये प्रॉपरली मैंने वहां से गैदर की है इंफॉर्मेशन। और आपको एक क्वेश्चन का जवाब, मतलब आपको पहले से ये याद कर लेना है कि इफ एवेल्यूएटर आस्क्स यू व्हाई यू हैव चूजन दिस टॉपिक, व्हाई यू हैव चोजन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और भी टॉपिक थे आपने वो क्या चूज नहीं करे, तो आपको बताना है कि टॉपिक मतलब क्यों आपने चूज किया। आप कह सकते हैं बिकॉज इट अलाइंस विथ माई अकेडमिक एंड पर्सनल इंटरेस्ट, ये मेरे पर्सनल और अकेडमिक इंटरेस्ट की वजह से मैंने इस टॉपिक को चूज किया है। आप और भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन आपको इस क्वेश्चन का जवाब पहले ही रेडी कर लेना है, क्योंकि कई बार जब एवेल्यूएटर के पास क्वेश्चन नहीं होते पूछने को, कि आपने बहुत अच्छा दे दिया प्रेजेंटेशन, तो आप लास्ट में वो यही पूछता है कि व्हाई यू हैव चोजन दिस टॉपिक, मतलब उससे क्या मतलब बेनिफिट है, क्या बेनिफिट हो रहा है। तो आपको ये भी कह सकते हैं दिस इज क्रिएटेड फॉर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस, ये इस टॉपिक के बारे में लोगों को नहीं पता, तो आप ये कह सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको पर्टिकुलरली ऐसे ही प्रेजेंटेशन तैयार करना है, मैं पोस्टर बता भी देता हूँ आपको, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं पोस्टर बनाना कैसे है। जैसे पोस्टर है, जैसे आपको ये तो ई पोस्टर प्रेजेंटेशन है ना, और पोस्टर आपको पावर पॉइंट में बनाना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर और भी सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर या तो
उनका प्रीमियम लेना पड़ता है आपको, नहीं तो उसको यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसको आप यूज करना बहुत आसान है, आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। पावर पॉइंट सबने चलाई है, कभी ना कभी तो पीपीटी बनाई होगी ना। तो बिल्कुल ये टेम्पलेट मुझे भेजा गया था। ये टेम्पलेट में आपको अपने हिसाब से, जैसे मैंने एक कलर बॉक्स लगा दिया जिससे अलग दिखे थोड़ा, नहीं तो ये वाइट था पूरा, तो मैंने कलर बॉक्स लगा दिया। आप क्या क्या डाल सकते हो, इंट्रोडक्शन डाल सकते हो, अपना इंट्रोडक्शन डाल दिया, अपना नहीं मतलब इन द सेंस टॉपिक का इंट्रोडक्शन डाल दिया, किस टॉपिक के बारे में। दूसरा आपने ऑब्जेक्ट डाल दिया, तीसरा आप लिटरेचर डाल सकते हो, चौथा मटेरियल एंड मेथड्स डाल दिया आपने कि आपने क्या मटेरियल, मेरे इसमें मटेरियल नहीं थे कुछ, तो मैंने नहीं डाला, आपको हटा देना है। मैं आपको मटेरियल्स एंड मेथड्स लिख देता हूँ, मैंने मटेरियल्स लिखे ही नहीं है, तो वो यहाँ गलत हो जाता है। तो आपने जो भी यूज किया है मटेरियल्स मेथड्स वो आपने डाल दिए। रिजल्ट डाल सकते हैं आप, उसके बाद आप कंक्लूजन लिख दीजिए। अब कोई चैलेंजेस है तो वो लिख दीजिए, कोई आपका रिसर्च वर्क है तो उसकी स्टडी लिख दीजिए, जो आपकी मॉलिक्यूलर डॉकिंग या पर्टिकुलरली कोई भी क्रोमेटोग्राफी स्पेक्ट्रोस्कोपी जिससे भी आपका कोई ग्राफ आया हो, जिसको आपको लगता है कि मैं इसे समझा सकता हूँ, ये मेरे पर्टिकुलर एक इस टॉपिक से रिलेट करता है, मैंने इस पर रिसर्च की है, तो आप वो इसमें लगा सकते हैं। फिर आप कंक्लूजन पे आ जाइए। कंक्लूजन पे आप लिख दीजिए कि ये कैसे बेनिफिट कर रहा है, ये टेक्निक कैसे बेनिफिट कर रही है, ये टेक्निक सॉल्युबिलिटी बढ़ा भी रही है कि नहीं बढ़ा रही। तो आप ये लिख दीजिए जैसे मैंने लिखा है। उसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट या रेफरेंस डाल के आप लिख सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट आप अपना कॉलेज का नाम डाल सकते हो उसमें, रेफरेंसेज मैंने आपको बता ही दिया, आप कमेंट बॉक्स में डाल दिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस पर भी एक वीडियो बनाऊं वैंकूवर स्टाइल पे, क्योंकि मैं बताऊं जब मैंने पहली बार प्रेजेंटेशन दी थी, पोस्टर प्रेजेंटेशन, तो मेरे साथ भी यही गलती हुई थी। मैंने सब कुछ अच्छे से बना लिया, लेकिन गलती कहाँ हुई, रेफरेंसेज में। रेफरेंसेज में मैंने क्या किया, मैंने कॉपी किया पेस्ट किया, फिर एक आर्टिकल पे गया, आर्टिकल से कोई भी आर्टिकल से मतलब उससे रिलेटेड ही था, लेकिन मैंने वहां से कॉपी पेस्ट करके लगा दिया। अब हुआ क्या, जब इवेल्युएटर ने जब मेरे से पूछा, क्योंकि हाँ जैसे ये लिखा हुआ है मैंने, तो उनने मेरे से ये पूछा कि आपने क्या 1000 पन्नों की बुक का जो साइट लिया है, क्या आपने 1000 पन्नों की बुक पढ़ी थी इसके लिए। तो मेरे को तो कुछ पता ही नहीं होगा, मैं तो कॉपी पेस्ट किया था, मेरे को लगा नहीं था ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने बताया आपको जैसे कि आपका अगर पोस्टर पूरा अच्छा है और आपने एक गलती रेफरेंस में तोड़ दी, तो सबसे पहले वो पॉइंट आउट होगी, क्योंकि वो आपका सुनने में ज्यादा वो नहीं है कि आप बोल रहे हो, उनको पता है कि वो ई पोस्टर प्रेजेंटेशन कोई देने आया है या पोस्टर प्रेजेंटेशन देने आया है कोई ऑफलाइन मोड में, तो उसमें नर्वसनेस इतनी नहीं होगी, वो कॉन्फिडेंट तो होगा, क्योंकि आधे लोग तो लेते ही नहीं इसलिए, क्योंकि बोलना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। तो आपने लिया है तो आपसे कुछ तो बात होगी। अब आपने ले लिया, अब वो इसमें गलतियां ढूंढेगा, ये चार्ट बताओ मुझे, ये कहाँ से लिया है आपने, और ये कहाँ का डेटा है, ये क्या इंडिया का डेटा है क्या ये। तो आपको बताना है इंडिया का डेटा नहीं है ये डेटा है, मैंने यूएसए के एक आर्टिकल है, वहां से ही मैंने ये लिया है, यूएसए का आर्टिकल। और रेफरेंस में फिर आपको बताना है कि आपने ये बुक नंबर नहीं है सर, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम है, इशू नंबर है, एंड देन उसके बाद जो भी पर्टिकुलर थिंग है वो आपको बतानी है। आपको बिना सोचे, मैंने भी ऐसे ही कह दिया सर, मेरे को पता नहीं तो मैं कुछ कह नहीं पाया, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो इस वीडियो को आप यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। आपको अब रेगुलर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स आगे मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। आपको अगर और भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बना सकूं, डेटा गैदर कर सकूं और आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू सो मच।